गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप यू वुड हैव ऑल enjoyed the Dussehra. Festivals are really good, right? Okay, they come once in a year and they just illuminate our lives, and we have the opportunity to mingle with our friends, with our families. So really, they are very what do you call time tested and that collective wisdom of society. They have been for centuries. Okay, you will be reading them in society. Okay, what is the significance of festivals? Okay, so when we'll be discussing society section, I will definitely discuss it again there. What is the significance? Okay. Anyhow, I hope you people would have enjoyed and rejuvenate yourself, and I wish your study also would be going in the right direction. As you know, we have started a high yield series. High yield series उसको बोलते हैं. This is purely based on previous year question analysis, right? For our UPSC mains. And in this series, till now we have finished three very important topic. The first one we have covered PPP. The second day we have covered on the inclusive growth. Yesterday we have covered what do you call this, public distribution system. And I hope you all would have enjoyed this session. Okay, and you would have reviewed whatever the one page crisp and condensed note I have shared in Telegram channel. And just I will request you and reinforce this fact that just go again and again this one page note. Try to recall what we discussed and try to add your own understanding. And as I told in every mains question, when you are getting, just try to analyze the stakeholder. Okay, which are the stakeholders involved in this particular problem? Try to relate it to your daily lives. Then solution will be automatically come into picture. You will be able to find what are the challenges, what are the way forward, what are the reforms government is taking. Everything you will be able to answer on your own. तो आगे फिर बढ़ते हैं. जैसे कि मैंने कल बताया था, आज हम लोग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ पीपीएससी. तो थोड़ा जैसे कि हर क्लास में हम करते हैं, थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे. जो भी पीयूआईक्यू में पूछा गया है लास्ट 5-6 मतलब 12 साल में, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ, I have been doing this for 2013 to 2024, analyzing these questions, and I am finding out what are the trends. Okay, what are the themes that is getting repeated. Based on that only, I am preparing these lessons. Okay, so let us begin for today's session. That is food processing, industrial और food processing sector. जो आपको अच्छा लगे वही बोल दो. ठीक है, पहले बताओ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होता है. मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि मान लो एक फार्मर हो गया गांव में, ठीक है, उसके पास गाय है, मतलब जो भी है, मतलब लाइफ स्टॉक है, ठीक है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. अभी क्या है, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, राइट. अगर वो इसको डायरेक्टली जाके मार्केट पे बेचेगा, देन ही विल बी गेटिंग लेटर से 40 रुपीज और 50 रुपीज पर लीटर. लेकिन मान लो वही मिल्क को, there is some facility in a village, and like people are doing cooperative or they are coming through self-help group, and what they're doing, they're processing this milk and making buttermilk. Okay, they are making cheese, they are making butter, they are making paneer. Okay, they are making lassi. Okay, they are making flavored milk. तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फूड को हमने प्रोसेस कर दिया, राइट. तो हमको फूड को प्रोसेस क्यों बेसिकली करते हैं? आपको पता है, जितने वेजिटेबल्स हो गया आपका, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ओके, लाइफ स्टॉक जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, ओके, जैसे मिल्क हो गया, ये सब क्या है? ये मतलब क्या है कि पेरिसेबल सब्सटेंस है. आप उसको कितना दिन रख सकते हो? ज्यादा दिन रख नहीं सकते हो. लेकिन उसको अगर हम वैल्यू ऐड कर दें, उसमें अगर कुछ प्रोसेसिंग ऐसा कर दे, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका प्रिजर्वेशन वाला पावर बढ़ जाता है. वो ज्यादा देर तक उसका सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाता है. उसमें हम न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा सकते हैं. ओके, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे मान लो टमाटो हो गया. ओके, टमाटो हो गया, टमाटो का हमने क्या बना दिया, किसान वाला जाम बना दिया. ओके, या फिर उसका केचप बना दिया. ओके, टमाटो सॉस खा रहे हैं ना हम, वो क्या है, फूड प्रोसेसिंग तो है, राइट. आपको रॉ हनी मिला जंगल से, ट्राइबल है, रॉ हनी लेके आ गए, लेकिन उसका क्या है कि उसने क्या, उनको हनी को प्रोसेस करके हनी का ब्रिक बना दिए. ओके,
तो दीज आर व्हाट कॉल, दीज आर फूड प्रोसेसिंग। ओके, अब जैसे कि फिश हो गया, हमने फिश को क्या किया, समुद्र से या फिर इंलैंड से फिश लेके आए, उसको प्रोसेसिंग किए, उसको कैन में डाल के फॉरेन को एक्सपोर्ट के लिए भेज दिए। तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग से क्या होता है आपको समझ में आ गया। वो डेली लाइफ में आप देखते हो, ओके, पापड़ हो गया, आपका अचार हो गया, वो क्या है, मैंगो आप लेके आए, मैंगो का आपने क्या किया, अचार में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है अचार तो 1 साल चलेगा। सेम मैंगो का आपने लाया, फ्रूटी बना लिया, जूस बना लिया, वो क्या हो गया आपका, मतलब फ्रूट जूस बन गया। ओके, तो ये हो गया फूड प्रोसेसिंग। यू हैव एम्पल ऑफ एग्जाम्पल, ओके, यू कैन फाइंड आउट ऑन योर ओन, डेली लाइफ में आप देखते हो। ओके, राइट। मिल्क हो गया, उसको मिल्क हमने मिल्क पाउडर में तब्दील कर दिया, अमूल हो गया। ओके, तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आपको समझ में आ गया। अब ट्राई टू मतलब एनालाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कौन करता है, उसमें स्टेक होल्डर क्या है। ओके, तो नॉर्मली फार्मर्स होंगे, क्योंकि वही तो वेजिटेबल उगाते हैं, वही हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट उगाते हैं। ओके, रूरल मासेस वही एंगेज होते हैं, वुमेन एंगेज होते हैं, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप एंगेज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका हो गया कोऑपरेटिव इन्वॉल्व होता है, राइट। या फिर बड़े बड़े आजकल से रिटेल चेन हो गया, मतलब जियो हो गया, जियो फ्रेश हो गया, अमेजन फ्रेश हो गया, ये सब लोग तो मतलब उनमें इन्वॉल्व है, तो आपका स्टेक होल्डर ये सब हो गया। ओके, तो बेसिकली क्या करता है फूड प्रोसेसिंग, आपको समझ में आ गया, कौन सा स्टेक होल्डर आ गया। तो अभी मतलब जैसे कि मैं टॉपिक के ऊपर जाऊंगा तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये सारी चीज है, खेल यही है। फिर आपस में मतलब चीजों को कनेक्ट करना होता है, और थोड़ा बहुत पॉलिश लैंग्वेज में लिखना होता है, वही होता है मेंस में। ओके, लेकिन ये चीज ना आपको खुद डेवलप करना चाहिए। देखो ये सब कॉमन चीजें है, अगर मेंस का तो सिलेबस आप पढ़ोगे ना, वो कुछ नहीं है, मतलब ये कॉमन मैन से रिलेटेड है। आप एक एक टॉपिक पढ़ो, भले ही वो थोड़ा अच्छे लैंग्वेज पे लिखा है, राइट, लेकिन दैट डजंट मीन इट इज वेरी एलियन। ओके, ये डेली लाइफ में होता है। आपको पता है आपके गाँव में लोग सिर्फ क्या क्या करते हैं, आपको गेहूं उगा दिए, ओके, मान लो सरसों उगा दिए, ओके, तो डायरेक्टली क्या करते हैं वो इंटरमीडिएट को बेच दे रहे हैं। ओके, तो उनको ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता है ना, ज्यादा प्राइस डिस्कवरी नहीं होता। लेकिन सेम मान लो आपके गांव में किसी ने क्या किया है कि मशीन लगा दिया, ओके, वो सेम मस्टर्ड को उसने कोल्ड प्रेशन मशीन में डाल के उसने क्या किया, मस्टर्ड ऑयल बना दिया। अब मस्टर्ड ऑयल का वैल्यू कितना हो गया, आप सोचो, मस्टर्ड ऑयल पर लीटर कोल्ड प्रेस का होता है 200 से 300 रुपए पर लीटर, इवन इट कैन गो फर्दर। मिल्क को घी में तब्दील कर दिया भाई, देसी घी में, हजार 2,000 रुपए होते हैं पर लीटर, अगर आप ऑथेंटिकेट वे बना रहे हो। तो उसमें क्वालिटी का इशू आ जाता है, राइट। ओके, हाइजीन का इशू आ जाता है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। ओके, राइट। तो बेसिकली आपका फूड प्रोसेसिंग का ब्रॉड आइडिया आ गया। अभी हम मुद्दे पे चलते हैं। ओके, फैक्ट, यूपीएससी पूछता क्या है, हर बार जैसे मैं बोलता हूँ ना, हर बार क्या करेंगे हम, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक स्टैंडर्ड से डिफिनेशन लेंगे, क्या होता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उसको पहले समझने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मल डेफिनेशन हमको रटना होना चाहिए। रटना मतलब सेंस कि आपको याद होना चाहिए। अब वहां बैठ के ना ऐसे बना नहीं सकते हो, इंग्लिश का स्टेटमेंट बैठ के 2 मिनट लगा रहे हो। आपको क्या है, 7 मिनट में लिखना होता है, या फिर 11 मिनट में लिखना होता है। अगर 10 मार्क का हो या 15 मार्क का हो, आपको क्या 20 to 30 सेकंड के भी सब कुछ सोचना है, मतलब लगभग 1 मिनट में सोच लोगे, 6 मिनट में लिखोगे। तो बैठ के आप स्टेटमेंट बनाओ, कैसे होगा, ऐसा नहीं होगा। घर से एकदम उसको प्रैक्टिस करके उसको याद रख के जाना है। तो क्या लिखोगे आप जब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में पूछा जाएगा। देखो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कुछ नहीं होता, एक टाइप का इंडस्ट्री है, सेक्टर है, जिसमें क्या होता है ना, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होते हैं, जैसे मैंने बताया ना अभी। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी क्यों होता है, और क्या क्या एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि हमको प्रोसेस करना मतलब उसको सेटिंग करना, उसको लेबलिंग करना, उसको ग्रेडिंग करना। ओके, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग करना होता है। उसमें उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। ओके, हम उसमें क्या उसको फोर्टिफाइड चीज बना देते हैं, उसमें मिनरल्स विटामिन ऐड करते हैं, ताकि उसमें और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकता है। ओके, जैसे मैंने बताया ना, मिल्क को हम घी में तब्दील कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, बटर में कर दिए, चीज में कर दिए, तो उसमें वैल्यू हमने ऐड की है। ओके, उसके बाद उसको पैकेजिंग करना, उसके बाद प्रिजर्वेशन हो जाएगा, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, फिर उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इतना ही इंडस्ट्री, इतना ही सेक्टर, मतलब क्या है कि ये हो गया आपका फूड प्रोसेसिंग। तो इसको बोलते हैं हम बैकवर्ड लिंकेजेस, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड लिंकेजेस, और इंटर चीज को हम बोलते हैं सप्लाई चेन। ओके, इसको बोलते हैं क्या हम, सप्लाई चेन। तो हमेशा याद रखना, मतलब बैकवर्ड लिंकेज मतलब क्या है कि जैसे कि फार्म हो गया या फार्मर हो गया, वहां से रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होता जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, वैल्यू ऐड होता जाएगा, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज बेसिकली क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हैं, राइट। ये हो गया आपका सप्लाई चेन। तो जब आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, इट comprises of wide range of activity that include processing, preservation, value addition, distribution of food products. Okay, आपको पता है इंडिया एक मतलब क्या है कि बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है। मैंने बताया ना 2-3 दिन पे जब पीडीएस डिस्कस आपको आपके साथ कर रहा था, इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस कर रहा था, लगभग 45% लोग क्या है कि एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। ओके,
तो बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और आपको पता है कि इंडिया की मतलब वास्ट क्या है, जो ज्योग्राफी या फिर जो टोपोग्राफी है, वो दैट इज वेरी मच सुटेबल फॉर डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसको हम बोलते हैं डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। आपको पता है ना, इंडिया का मैप देखोगे आप, जैसे लोग ऐसे देखोगे, यहाँ पे डेजर्ट हो गया आपका, यहाँ पे ऊपर हिमालयन हो गया, यहाँ पे सदर्न में पेनिनसुलर हो गया, यहाँ पे ईस्ट वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या है कि बायो जियोग्राफिक रिलाम है, और या फिर बोलते हैं हम एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। देखो ऊपर नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन में क्या होता है, राइस होता है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आपका पैडी होता है, सरसों होता है, ओके, यहाँ पे आप देखोगे कॉटन होता है, मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट डिफरेंट चीज हम उगाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, डाइवर्स है हमारा। तो इसमें क्या है कि हमको एडवांटेज है ना, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ नॉर्थ में हमको एप्पल मिलता है, ओके, साउथ में हमको कसावा मिलता है, राइट, यहाँ हमको ऑरेंज मिलता है, ओके, फिग मिलता है, क्यूई मिलता है, सब कुछ तो मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, मिल्क मिलता है, फिशरी, मीट, सब कुछ मिलता है हमको, व्हीट, गेहूं, मिलेट। इसका मतलब कि हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। दैट मीन्स इंडिया का जो पोजीशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन है और जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको काफी सुटेबल बना देता है। किस लिए? फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके लिए। तो क्या होगा, मतलब इमर्जिंग जो इंडस्ट्री आ रहा है ना आजकल, जैसे आपको पता है आज के लाइफ क्या है, फास्ट हो रहा है, बिजी हो रहा है। आपको पता है अमेरिका में कैसा लाइफ चलता है, सब कुछ पैकेज फूड है, मतलब फ्रिज खोलोगे तो कोई भी फ्रेश चीज नहीं मिलेगा, एकदम सब पैकेज है। बर्गर से लेके ब्रेड तक से लेके मिल से लेके डिनर तक सब कुछ सब कुछ फ्रिज से निकालो डायरेक्ट खाओगे, ओके, सब कुछ पका पका है। आजकल हमारे लोग तो वैसे ही कर रहे हैं। आपको पता है आईडी वगैरह का जो ब्रांड आ गया, उद्यम वगैरह जो ब्रांड हो गया, वो क्या करते हैं, आपको बाटर बनाना नहीं है, फ्रिज में बाटर रख लिए, या फिर आपको जो पराठा होता है ना, वो डायरेक्टली आपको क्या होता है, बस तवे पे सेकना होता है, तो वो क्या है लोगों की डिमांड चेंज हो गया है, ओके, वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का तो मतलब कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है एमटीआर वगैरह जो ब्रांड है ना, वो डायरेक्टली आपको पनीर है ना, वो पनीर बना बना के देते हैं। मैगी देख लो, मैगी क्या है, आप सिर्फ गर्म पानी में डालो खा लो। समझ रहे हो ना चीजों को, मतलब चीज काफी सिंपल है, ये डेली लाइफ में होता है, लेकिन आपको क्या है ना, टेक्निकली थोड़ा सोचना है, सिलेबस के हिसाब से सोचना है, तब जाके काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा चीज। तो जैसे आपने दो चीज सीखा अभी डेफिनेशन से, क्या होता है फूड प्रोसेसिंग, और दूसरा हम सीखा कि इंडिया क्या कि काफी फेवरेबल है, ओके, क्योंकि हम काफी तरह का, काफी वेरायटी का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, तो जो कि काफी इम्पेटस देगा इस सेक्टर को, और इसको बोलते हैं सनराइज सेक्टर, ओके, मतलब इसमें ग्रोथ होता जाएगा, अभी एकदम राइज ट्रेंड पे है। तो यूपीएससी इसमें पूछ क्या रहा है, ओके, अगर इतना सारा अच्छा चीज है तो उसमें आपको जैसे ही मैं सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, सब सेक्टर तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन उसमें यूपीएससी इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट दिखाता है क्या, चैलेंज क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई, इशू क्या है, क्यों फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। चलो, ये एक थीम हो गया। दूसरा क्या बताते हैं, स्कोप हो गया या सिग्निफिकेंस हो गया, मतलब इसका क्या स्कोप है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अगर हमारे देश में अच्छा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर है, उसमें भला होगा या बुरा होगा, क्या होगा, ये भी पूछता है यूपीएससी। आपको पता है एक बार चैलेंजेस आपको पता है, आपको स्कोप पता है, फिर आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, आपको रिफॉर्म्स डालना है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, उसमें क्या मतलब क्या लैगिंग क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ लूप होल है, उसको हमको फिल करना है। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, कल को ही तो करोगे कि चीज क्या है, मतलब ये हम आज ए कंट्री इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके। तो इस सेक्टर क्या है, बूम हो रहा है, तब इस सेक्टर को क्या करना है, उसको रीइंफोर्स करना है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उसमें जो बटल है उसको एड्रेस करना है, यही तो है आज आज एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम है। तो वैसे ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री हो गया है, तो मतलब आपको उस हिसाब से सोचना है, ओके। तो आज क्या करेंगे ना, देखो इस लेक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि काफी मतलब यूपीएससी काफी घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले आज स्कोप और सिग्निफिकेंस उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद चैलेंजेस को भी पढ़ लेंगे, अगर टाइम मिलता है, देखो मैं आधा घंटे का सेशन लेता हूँ, तो अगर ये स्कोप और सिग्निफिकेंस कवर हो जाएगा आधा घंटा में, तो आज रोक लेंगे, फिर कल हम चैलेंजेस और सॉल्यूशन वो फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या है स्कोप है, क्या स्कोप एंड सिग्निफिकेंस है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी है या फिर जो सिग्निफिकेंस है उसका क्या है। देखो यूपीएससी घुमा घुमा के पूछेगा, कभी बोलेगा स्कोप बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, अपॉर्चुनिटी बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, सब सेम है भाई। तो पहले क्या करके देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंस।
जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया का क्या है ना, लार्ज रॉ मटेरियल बेस है। अभी बताया ना, हमारा डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ज्यादातर चीज है जो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो, जापान एक कंट्री है, उसके पास ना तो आयरन है ना तो कोल है, लेकिन वो सब क्या करता है, इंपोर्ट करता है, फिर सब कुछ उसी हिसाब से अपना इकोनॉमी को डेवलप करता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, मतलब हमारे पास सब कुछ है, वेजिटेबल है। हम देखेंगे डेटा के हिसाब से, देखेंगे देखो हम लोग क्या है ना, वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। मतलब वर्ल्ड का 17% जो मिल्क हमारे देश में प्रोड्यूस होता है। तो डोंट यू थिंक कि हमारा जो शेयर होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग में वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। लेकिन ये आयरनी है, हम लोग काफी पीछे हैं। छोटे छोटे कंट्री जो न्यूजीलैंड हो गया भाई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप के छोटे छोटे कंट्री हो गया, उनके डायरी प्रोडक्ट आके यहाँ इंडिया में बेच रहे हैं। आपको पता होगा, ओके। हमारी जो प्रोडक्ट है वहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन होना तो चाहिए भाई। आप वर्ल्ड का 17% मतलब मिल्क शेयर आपका है, और आपका जो मतलब वर्ल्ड में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, आपका कंट्रीब्यूशन एकदम 10% से कम है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, ओके। मतलब इंडिया का अमूल का जो प्रोडक्ट है, क्या मतलब वर्ल्ड में हर जगह पे बेस्ट, मतलब क्या उसको मतलब सेल होता है, क्या नहीं होता है? और इंडिया में नहीं हो पाता है। लोग बोलते हैं हम फ्रेश खाएंगे, ओके। तो हम जाएंगे, बाद में जाएंगे चैलेंज को, तो अभी देखते हैं। देखो इंडिया का क्या है कि लार्ज रॉ मटेरियल बेस है, तो उससे क्या होगा, जैसे कि आप देखो कुछ भी लिखोगे, डेटा लिखोगे, डेटा नहीं लिखने से क्या होगा, जनरलाइज हो जाएगा, ओके। लगेगा कि यार ये टी शॉप वाला बात कर रहा है, लेकिन डेटा लिख दोगे ना, ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिक हो जाएगा आंसर फिर। तो कैसे लिखोगे, जो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, 17% हमारा शेयर है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, मतलब क्या फिशरी है, मतलब फिश प्रोडक्ट हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्रोड्यूसर है। हम लोग वर्ल्ड में लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन हमारे देश में है। भाई काव हो गया, बफल हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, पता नहीं क्या 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 वेरायटी हमारे देश में है, ओके। तो वी हैव द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, ओके। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग के पास ज्यादातर क्या क्या रहेगा, फिर हम लोग के पास ज्यादातर अपॉर्चुनिटी रहेगा, ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया पहला पॉइंट, इसका सिग्निफिकेंस आपको पता लग गया। दूसरा क्या है, जो ये मिलता जुलता है फर्स्ट पॉइंट से, हमारा क्या डाइवर्स बेस ऑफ रॉ मटेरियल है, ओके। मतलब हमारे पास कई वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, हमारे पास लाइफ स्टॉक है, हमारे पास फिशरी प्रोडक्ट है। तो इसमें इसमें मतलब क्या है, तो हमको ज्यादा सिग्निफिकेंस मिलेगा ना, ज्यादा हमारे पास स्कोप है, राइट। सेम चीज है, इसमें मैं क्या क्या बोलना चाहता था कि हमारे पास लार्ज रॉ मटेरियल है वैसे, ओके। और इसमें मैं डेटा के साथ सब्सटेंशिएट किया, इसमें मैं बोला हूँ हमारे पास डाइवर्स चीज है। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया आपका, मिलेट हो गया आपका, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्लावर्स हो गए, ओके, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरी हो गया, मीट हो गया। आपको पता है इंडिया का कोस्ट लाइन क्या है, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा है। तो पूरा का पूरा जो मराइन सेक्टर है, वो तो फूड प्रोसेसिंग का सबसे ज्यादा बड़ा मतलब इनपुट होगा ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये सब हमारे लिए क्या है, स्कोप देता है ना, तो ये सिग्निफिकेंस फिर बढ़ जाता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का, ओके। थर्ड, हमारे पास क्या है, सबसे हमारा बड़ा ताकत क्या है, पॉपुलेशन। 140 करोड़ से ऊपर हमारा पॉपुलेशन है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, कंज्यूमर मार्केट सबसे सबसे बड़ा है, लार्ज मतलब लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए तो सब कोई चाहता है इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए। इसी एफडीआई, एफआई वगैरह, एफपीआई वगैरह इंडिया को कितना क्यों ज्यादा आता है, सारे लोग क्यों हमारे मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ओके। तो हमारे देश में क्या है कि कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए सारे ब्रांड हमारे देश में आना चाहते हैं, ओके। एंड आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है ना, हमारा जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है, ओके, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ओके। तो डिमांड ह्यूज हो रहा है। आपको पता है ना, पहले लोग क्या क्या करते थे, ज्यादा प्रीफर नहीं करते थे, लेकिन आजकल आप देखो, आप एयरपोर्ट में जाओगे, लोग प्रीफर करते हैं। आप रेलवे स्टेशन में जाओगे, वो लोग क्या करते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, ओके। एक्सेप्टेंस आ गया, वो चाहते हैं, इसलिए तो वो लोग मतलब, इसलिए तो मतलब हम लोग अभी अभी देख पा रहे हैं ना बाजार में, ओके, कि ये एमटीआर वगैरह हो गया, ये रेडीमेड पनीर, रेडीमेड छोले आ गया, ओके, रेडीमेड मैगी आ गया, सब क्यों आ रहा है, क्योंकि लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, ओके। लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग अभी इकोनॉमी में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं, और उनके पास टाइम नहीं है। क्या आपको यूथ को तो पता है, बर्गर खाना है, ये खाना है, वो खाना है, राइट, ओके। तो डिमांड काफी ह्यूज है, ये आप लिख सकते हो। तो इसके हिसाब से क्या सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा ना, फूड प्रोसेसिंग अगर करके देंगे तब तो जाके मतलब लोगों को चॉइस मिलेगा, ओके। दिस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। आप बताओ, इस सेक्टर की वजह से हमारे देश में मतलब ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट मतलब हो गया है। इसका मतलब क्या है कि धनाधन हम हमारे पास फॉरेन कैपिटल आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इनोवेशन आएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आएगा। तो देश के लिए तो मतलब अच्छा है ना फिर ये, तो उसका सिग्निफिकेंस फिर बढ़ जाता है सेक्टर का, ओके।
फिर गवर्नमेंट की तरफ काफी ज्यादा पुश भी है। अब गवर्नमेंट को पता है ये सनराइज सेक्टर है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, इसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन का मतलब पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ओके, लोगों को हिडन हंगर से उठाने के लिए मतलब हम कर सकते हैं काम, क्योंकि इसमें हम फूड को फोर्टिफाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट ने काफी पुश दिया है। ओके, जैसे कि आपको पता है पीएम किसान संपदा, ये मतलब ये एक योजना है, स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये एक मतलब स्कीम है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएलआई स्कीम। आपको पता होगा ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में दिया जाता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग को भी दिया गया है। ओके, इसका मतलब कोई मान लो कोई एंटरप्रेनर आ गया, उसने क्या किया, मिल्क को पनीर में कन्वर्ट करने के लिए कोई इंडस्ट्री लगाया, तो उसको क्या गवर्नमेंट करता है ना, उसको इंसेंटिव देता है, भाई तुम लगाओ, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सब्सिडाइज रेट में लोन देंगे, आपको मतलब सब कुछ जो है ना चीज एकदम इजी कर देंगे, ईज ऑफ डूइंग जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम आसान करवाएंगे, राइट। मेगा मेगा फूड पार्क हो गया, ये सब स्कीम गवर्नमेंट चला रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से थ्रस्ट है। आपको पता है ना देश में चीज कैसे चलता है, गवर्नमेंट की तरफ से बैकिंग होना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट कर रहा है चीज ना, तो फिर बूम होता है सेक्टर। और गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, तो फिर तो आपको पता है चीज मतलब ज्यादातर क्या होगा, फिर वो टाइम लेता है फिर ग्रो करने में। ओके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतने भी हमारे देश में कैपेबल है नहीं, क्योंकि सारा का कंट्रोल अभी भी गवर्नमेंट के पास है। ओके, उसके बाद आप देखो कि मतलब ये स्कोप क्यों बढ़ जाता है और स्किल में क्या क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो पोटेंशियल है ना, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हम उसको बोलते हैं अनटैप्ड पोटेंशियल हो गया, मतलब स्कोप ऑफ एक्सपांशन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। क्यों भाई, हम सिर्फ 2% ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल को प्रोसेस कर पाते हैं, सोच रहे हो 2%। और जबकि हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सिर्फ हम 10% जो है ना मरीन प्रोडक्ट उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं, जो कि फिश हो गया, लॉबस्टर हो गया, या फिर प्रॉन हो गया, जो भी है ना, हम सिर्फ 10% प्रोसेस कर पाते हैं। अब कंपैरेटिवली तुम देखोगे ना, यूएसए क्या करता है, 65% प्रोसेस कर पाता है, चाइना 23% कर पाता है। मतलब आप देखो, हम सिर्फ 2% 10% करते हैं। ओके, और वहां 60% 25% लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो शेयर है ना वर्ल्ड की जो इकोनॉमी में बढ़ेगा ना, वो एक्सपोर्ट करेंगे, उनके जीडीपी तो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ेगा। ओके, लोग ज्यादातर पॉवर्टी से एलिवेट होंगे। तो ये मतलब क्या है कि फिर इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है ना, हमारे पास पोटेंशियल है, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस फिर बढ़ जाता है। ओके, दूसरा क्या है, आपको पता है ना हमारे देश में फार्मर का सिचुएशन काफी बुरा है। ओके, वो हमेशा क्या करते हैं, वही एमएसपी पे आपका गेहूं हो गया फिर राइस हो गया उसको बेच देते हैं, लेकिन मान लो फार्मर को ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वॉल्व किया जाए, मतलब उसको उनको हम करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वेजिटेबल को फिर टमाटो को केचप बनाएंगे। ओके, पोटाटो का चिप्स बनाएंगे। तो फार्मर के पास फिर क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटिव सोर्स आ जाएगा ना, फिर उसका फार्मिंग क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर उसका जो हम लोग का क्या टारगेट है, हम फार्मर का इनकम को डबल कराएंगे, सुसाइड रेट उसका हम घटाना है, हमको डिस्ट्रेस सेल कम करना है। ओके, समझ में आ रहा है ना चीजें, मतलब एकदम लॉजिकल। आप ऐसे सोचोगे ना तो तुरंत आ जाएगा सारे पॉइंट आपके दिमाग में। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है कि हमको क्या करना है ना, जैसे कि अभी बताया ना, हम जैसे कि फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो चीजों का क्या होता है ना, बेटर यूटिलाइजेशन होता है, सेल्फ लाइफ उसका बढ़ जाता है। आपको पता है ना ये सब चीज ना पेरिसेबल आइटम होते हैं। आप देखो मैंगो हो गया, अब मैंगो क्या है कि 2-3 मतलब महीने के लिए रहेगा, लेकिन मैंगो को मान लो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, तो मैंगो का हमने क्या किया, मैंगो का जो जूस है ना उससे हमने ब्रिक बना लिए। ओके, अब मैंगो का हमने कोल्ड चेन है ना उस फैसिलिटी में रख लिए, तो क्या होगा, हम 6 महीने 7 महीने तक मैंगो को एंजॉय कर सकते हैं ना। उसका हमने जूस बना लिया, उसका पल्प को हम स्टोर कर लिए, उससे हम अचार बना लिए, तो क्या हो गया फिर, मतलब ये बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, अब एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है एम्प्लॉयमेंट का क्या प्रॉब्लम देश में, मैंने बताया था कल आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के जैसे डिस्कस कर रहा था मैंने, हमारे देश में काफी एम्प्लॉयमेंट की क्या क्रंच है। मतलब आपको पता है ना पीरियडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है वो बताता है ना, लगभग 6% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 45 ईयर्स हाई है। तो सोचो इस सेक्टर में हम कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, लगभग 10 लाख बोलते ना जॉब इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट की डेटा है। ओके, तो इसमें क्या ह्यूज पोटेंशियल है। हम क्या करते हैं वुमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, फार्मिंग, जो लोग इतने सारे लोग 45% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उस वहां पे क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उनको हम यूज कर सकते हैं ना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा। उसके अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वही है, टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है ये सब चीज ना, फार्मिंग में क्या होता है भाई, 2-3 महीना खेती होता है, उसके बाद फिर लोग घर में बैठ जाते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करते हैं, या फिर फोर्स लेबर करते हैं, या फिर बंधुआ मजदूरी करते हैं। क्यों करना है भाई, उनको उठा के लाके ये सब चीज कर लो ना। आप सिर्फ देखो गन्ना हो गया, और गन्ना को आप क्या कर रहे हो, सिर्फ या फिर डायरेक्टली बेच दे रहे हो, या फिर मतलब मैक्सिमम क्या आप बोलते हो उसको,
मतलब जूस बना के बेच रहे हो। अगर लोगों को कोऑपरेटिव सेक्टर में डाल दिया जाए कि आप क्या करो ना, इस गन्ने से आप शुगर मिल, शुगर या फिर कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, तो क्या होगा, उनका इनकम बढ़ जाएगा ना, वहां पे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। तो यही तो चीज है। उसके बाद क्या है कि आपको पता है कि मतलब जो रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है। लोगों को लगता है कि अर्बन एरिया में जाएंगे ना, सिटी में जाएंगे सब कुछ है। तो ये जो माइग्रेशन की वजह से हमारा क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो जो जितने सारे प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता है, सिटी वगैरह क्या है एकदम ओवरबर्डन हो गया। लेकिन मान लो हमारे गांव में हमने कोकोनट को प्रोसेस करने का इंडस्ट्री खोल दिया। आपको केरला में जाओगे ना, घर घर पे इंडस्ट्री है कोकोनट से। हम क्या करते हैं, कोकोनट का ऑयल निकाल देते हैं। तो इसमें क्या होगा, फिर रूरल के लोग को, रूरल के जो यूथ है वो फिर अर्बन की तरफ भागेंगे नहीं। तो माइग्रेशन को कंट्रोल करेगा, रिड्यूस करेगा। और जो रूरल यूथ है वो इंटरप्रेन्योर बनेंगे भाई। समझ में आ रहा है ना। कोकोनट हो गया, कोकोनट का जो है ना जो कोयर है, वहां से कितने सारी चीजें बनता है। वो रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उसमें, काफी सारा हम हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं। यही तो है भाई, इनोवेशन इससे आता है, ग्रास रूट लेवल पे। ओके, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, इनको एंगेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है वुमेन का हाल क्या है। ओके, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं। बाकी जो डिसएडवांटेज जो मार्जिनल सेक्शन है उनको भी हमसे हेल्प ग्रुप हो गया है, फिर हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया, उनको उनके क्या कर सकते हैं ना, उनको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एंगेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, उनका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उनको इनकम सिक्योरिटी मिलेगा, उनको क्या होगा ना, जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाएगा, और सब भला भला होगा। ओके, उनको एम्पावरमेंट हो जाएगा। आपको पता है ना देश में ये सब छोटा छोटा चीजें वुमेन ही करते हैं। ओके, आपको पता है ना, पापड़ बेचेंगे, लेकिन देखो उनका पोटेंशियल कितना कम है। ओके, लेकिन मान लो सब मिलके आ जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, तो पापड़ को वो क्या कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भेज सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को भेज सकते हैं। मिलके पिकल बनाएंगे, ओके, उसको फिर एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा उनका, सोचो। लड्डू बनाएंगे, आजकल मिलेट का लड्डू आ गया, कोकोनट का लड्डू आ गया, और तिल का लड्डू आ गया। ये सब तो लोगों का चाहिदा बढ़ रहा है ना, तो लोगों को लगाओ वहां पे। पोटैटो चिप्स बनाओ आप, मतलब कितने सारे चीज आप कर सकते होगे। बनाना चिप्स बनाओ आप, मतलब जैकफ्रूट का चिप्स चिप्स बनाओ। ये सब चीज क्या है, ये सब फूड प्रोसेसिंग तो है। तो लोगों को स्किल दो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, उनको वही सारे जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना उसको उनको मुहैया कराओ, अवेलेबल करवाओ सब्सिडी के थ्रू से। तो इसे हमको करना चाहिए। ओके, तो इसलिए इस सेक्टर का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें हम सारे सेक्टर का ना इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक याद आ रहा है, सबको यूज कर सकते हैं भाई। एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर से यूज कर सकते हैं, हंगर जो हमारा हिडन हंगर उसको एड्रेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो ट्राइबल, आपको पता है ट्राइबल लोग क्या करते हैं, वो जंगल से आते हैं, वहां पे क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको लेके आते हैं, लेकिन उनको क्या है कि फिर इंटरमीडिएरी होते हैं, वो लेके चले जाते हैं। ओके, कोई वैल्यू उनको नहीं मिलते हैं, आपको पता है ना। लेकिन उसको अगर हम उनको सिखा दें, जैसे कि वन धन विकास केंद्र हो गया, या ट्राइफेड से आपका ट्राइबल प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो गया, जैसे कि ट्राइफेड ने अमेजन के साथ लिंकअप किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा फिर, जो ट्राइबल प्रोडक्ट है आपको पता है वो ऑथेंटिक है, मतलब वो क्या है कि नेचुरल ऑर्गेनिक है। अब शहद मतलब हनी हो गया, अब मान लो वो ट्राइबल लोग जो कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं उसको हमने प्रोसेस कर दिया, तो वो हनी का कितना मतलब वैल्यू बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ ईटिंग अडल्ट्रेटेड हनी, अगर हम इस ट्राइबल जो मतलब जो पॉपुलेशन एंगेज है, जैसे कि वो किसको बोलते हैं ना, बी कीपिंग ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई भी जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके आते हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, या फिर कोई गम बना रहे हैं नेचुरल, जैसे लैटेक्स बना रहे हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं ना, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं ना कि भाई आप आपको क्या हम उनको स्किल देंगे, तो उसमें क्या होगा, वो वैल्यू ऐड करेंगे, उनका इनकम भी बढ़ेगा। उनके वहां पे क्या है, ट्राइबल एरिया वगैरह हमको पता है क्या होता है, इंसर्जेंसी होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, बढ़ता जाता है ना वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके, ओके, दूसरा चीज देखो, मैंने बताया था ना इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है इकोनॉमी की तरफ से। ओके, आपको पता है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डेटा के वाइज 12% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। अब सोचो पूरा का पूरा जो है आपका एग्रीकल्चर 45% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ क्या कितना कंट्रीब्यूट करता है, 17% करता है या फिर 16% करता है। एक छोटा सा मैन्युफैक्चर मतलब फूड प्रोसेसिंग जो है 12% तो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। सोचो कितना पोटेंशियल इसका है। तो सिग्निफिकेंस है ना, यही तो सिग्निफिकेंस है, यही तो अपॉर्चुनिटी है। ओके, आपको पता है इस सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जैसे कि हम प्रोसेस कर देंगे तो जो चीजें है ना, जो चीज मतलब खराब हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ना, उनका सीजनलिटी, एक सीजन में प्रोड्यूस होता है, वो पेरिसेबल हो जाते हैं। तो ना हम जैसे हम प्रोसेस करते हैं तो उनका हम क्या करेंगे, हम उसका जो वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और टमाटो आ गया भाई, बारिश हो गया, टमाटो खराब हो गया ना, लेकिन मान लो गांव में ही कोल्ड चेन का फैसिलिटी है, आलू पोटाटो का मतलब फैसिलिटी है, वो कर्ली फ्लावर का मतलब कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी है। तो हम उसको रख सकते हैं ना, ज्यादातर ज्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम हम उसको वहां पे स्टोर कर सकते हैं।
तो उसमें क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, फिर आपको पता है नहीं इन्फ्लेशन हो जाता है, जैसे ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, इसका इन्फ्लेशन कितना होता है, मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं स्क्यूड इन्फ्लेशन। अभी भी देखो टमाटो का रेट कितना चला, 70 रुपीज। देखो आपको पता है जैसे टमाटो का रेट कितना होना चाहिए, 20-30 रुपये होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। अभी बैंगलोर में रिसेंटली बारिश हुआ है, तो बैंगलोर क्या करता है, मतलब पूरे इंडिया को सप्लाई करता है टमाटो, अभी ठप हो गया पूरा एकदम। उड़ीसा में आलू का प्रॉब्लम अभी बीच में हो गया, क्योंकि सिर्फ वही वेस्ट बंगाल ही आलू देता है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर मान लो हम इस टाइप का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, कि हम इन्फ्लेशन को भी काउंटर तो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने क्या किया, ग्रीन पीस हो गया, उसको फ्रोजन, आपको पता है सब चीज फ्रोजन मिल रहा है। टमाटो का हमने क्या किया, उसका प्यूरी बना दिए, ओनियन गार्लिक का पेस्ट बना दिए। करो भाई, ओनियन फिर क्यों चाहिए आपको, टमाटर क्यों चाहिए आपको, टमाटर को खाने आप क्या करोगे भाई, प्यूरी बना के तो ही उसको उसमें करी बनाओगे। हमने प्यूरी बना दिया, उसको रखो फिर फ्रिज में 6-6 महीने, फिर काहे का इन्फ्लेशन भाई। गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गया भाई, इस टाइम पे गार्लिक चला है 300 रुपये 400 रुपये केजी, जबकि होना चाहिए 150 120 होना चाहिए। इतना प्राइस क्यों है, इतना इन्फ्लेशन क्यों है। अगर हम उसको प्रोसेस करके पेस्ट जैसा स्टोर कर लें, घर में आके तो वही करना है भाई, वही पील करना है, पेस्ट करना है। समझ सकते हो ना। इसके बाद क्या हो गया, फोर्टिफाइड फूड हो गया, मैंने बताया था, हम उसके उसके अंदर क्या है, जैसे कि हम वैल्यू ऐड करते हैं ना, हम न्यूट्रिशन उसको बढ़ा देते हैं, विटामिन ऐड कर सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हिडन हंगर वाला प्रॉब्लम चला जाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारा बढ़ जाएगा। ओके, तो हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगा। हम बताए थे ना पीडीएस में क्या प्रॉब्लम है, मिलेट डालो। तो लाइक दिस, अगर हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर गांव में डेवलप होगा, तो उसका प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, पीडीएस में दे सकते हैं। हो गया आपका इंटरलिंकेज, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से पीडीएस का इंटरलिंकेज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आप देखो नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है, हम क्या कर सकते हैं ना, ये सब चीज क्या ना, जैसे कि हम जैसे रूरल हो गया या फिर रिमोटेस्ट एरिया में, हम इसका अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब कोई दूर दूर का जो गांव है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर नहीं है, तो वहां पे चीज नहीं मिलता है, लेकिन हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, चीजों को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लोगों को मतलब एक्सेस करा सकते हैं, वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं, या फिर कम पैसा में वो लोग खरीद सकते हैं चीजें। उसके बाद क्या है कि आपको पता है इसका एक्सपोर्ट भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमारे देश से मान लो मीट प्रोसेस होके जाके चिकागो में बिचेगा। लोगों को पता है चिकागो क्या आता है, वो वर्ल्ड का, उसको बोलते हैं ना मीट का जो हब है। और लेकिन इंडिया में इतने सारे मतलब क्या उसको बोलते हैं, गोट है, लाइफ स्टॉक का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, फिशरी क्या, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 10% सिर्फ कर रहे हैं। तो अगर हमने स्मूथली जो भी मैंने बताया ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों को अच्छे से मतलब सप्लाई चेन को मैनेज कर लिए, तो इसमें एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग वो बढ़ जाएगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट वो कम हो जाएगा। तो देश का मतलब कितना अच्छा होगा सोचो। इसके बाद मैंने बताया था ये सब क्या है कि हाइल्ड वेराइटी प्रोडक्ट होता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, डायरी हो गया, इनका सेल्फ लाइफ काफी कम रहता है। आप देखो, आप मिल्क हो गया, टमाटो हो गया, ये सब क्या खराब हो जाता है ना, एप्पल हो गया, तो इसको अगर हम प्रोसेस करें ना, तो सोचो मतलब वो कितना वैल्यू ऐड कर सकता है, वो इनकम मतलब कितना सिक्योरिटी देगा फार्मर को या फिर जो प्रोड्यूसर होता है, तो देश के लिए भला तो है। इसके बाद आपको पता है जैसे देश में सिर्फ क्या है कि जो व्हीट और जो राइस है ना, इसका क्रॉपिंग जो पैटर्न सिस्टम है काफी स्क्यूड है। हर जगह पे लोग वही करते हैं, शुगर केन उगाते रहते हैं, जूट उगाते रहते हैं। भाई ये क्यों करना है, इतना वाटर गजलिंग क्रॉप क्यों करना है। अगर लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गया ना कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भाई बूमिंग है, इसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे भाई, वेजिटेबल उगाएंगे ना अपनी खेती में, फ्रूट्स उगाएंगे, अपना क्रॉप को डाइवर्सिफाई करेंगे, मिलेट उगाएंगे। ओके, आपको पता है आजकल मिलेट का मिक्सर आने लगा है, मिलेट का मैगी आने लगा है, मिलेट का पास्ता आने लगा है, मिलेट का बिस्किट आने लगा है, मिलेट का लड्डू आने लगा है, ये सब क्या है भाई, यही तो है फूड प्रोसेसिंग का पावर। तो इसमें क्या होगा, सबका भला, इनकम मिल जाएगा, सिक्योरिटी मतलब इनकम सिक्योरिटी मिल जाएगा फार्मर को, लोगों को, ओके, वुमेन को जॉब मिल जाएगा, पोटेंशियल मतलब ह्यूज है, मतलब कहने का जरूरत नहीं है। आप अपने डेली लाइफ में एक चीज उठा के देखो, अपना फ्रिज को एक बार झांक के देखो, कितना पोटेंशियल है इस छोटे छोटे से सेक्टर का। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया मैं आज क्या बताया आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में। देखो चीजें ना बहुत आसान है एक्चुअली, लेकिन चीज ना अगर हम अच्छे से समझ लें, तो सब कुछ खेलना जो है वो समझने का है। मैं इसीलिए ना जो मैं यूपीएससी का जो फुल फॉर्म बताता हूँ बार बार, क्या बताता हूँ, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग हो गया भाई। अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो गया,
मैंने आपको कितना पॉइंट दिया बताओ? मैंने आपको बताया 20 पॉइंट। अब 20 में एक एक लाइन में 3 3 4 पॉइंट लिखा हूं, मतलब 30 पॉइंट बताया हूं। 30 पॉइंट आपके पास है, आपको एग्जाम में 4 5 लिखना है। आप सोचो। लेकिन आपको भी पता है चीजें आसान है, ये सब तो डेली लाइफ में होता है, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास वो एक पेज वाला नोट नहीं होता है, सब कुछ कंसोलिडेट नहीं होता है, चीजों को कनेक्ट करना नहीं आता है, आप सिर्फ रैंडमली पढ़ लेते हो। लेकिन अगर आप एक पास मतलब आपके पास यही एक पेज का नोट है, आप डेली उसको पढ़ रहे हो, तो कितना आसान हो जाएगा लाइफ, सोचो। तो अंडरस्टैंडिंग देखो बहुत जरूरी है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गया ना, आप सोचना स्टार्ट कर दिए कि यार नेचुरली क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ो, जैसे मैंने पीपीपी बताया। आप देखो एयरपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, ओके आप सोचो खुद। अगर मान लो ये जीबी मतलब क्या उसको बोलते हैं भाई, जीएमआर हो गया, ओके, अदानी हो गया, ये सब लोग को नहीं आते हैं तो हमारे देश में मतलब कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लैग हो जाता। तो पीपीपी आया तब तो जाके ये सब हुआ। ओके। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग, आपको पता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आप ना चीजों को तोड़ो और सोचो कि मतलब मेरे लाइफ से कैसे रिलेटेड है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई मेरे मेरे लाइफ में टमाटो जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, सॉस की क्या मतलब, आप मैगी का सॉस खा लेते हो ना पकोड़े के साथ, ओके, लेकिन आप सोचते नहीं हुए कि भाई सॉस कैसे बनता है। यही तो है मैजिक समझने का। आप मतलब बटर लगा के डेली सुबह ब्रेड के साथ खा लेते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बटर जो है, ये भाई एक बढ़िया से इनकम सोर्स है। आपने मतलब आपके दोस्तों के साथ क्या किया, लंच के बाद क्या कि चिक्की खा लिए है। इधर हमारा चिक्की का भी फेमस है। कभी आपने सोचा कि ये सिंपल ग्राउंड नट का प्रोसेसिंग हो गया, इसमें जागरी डाल दिया तो लोग भी खुशी हो गए, भाई भाई शुगर नहीं खाना है, हम तो चिक्की खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। ओके। तो ये सब क्या है, मतलब डेली लाइफ का जो रोजमर्रा का चीज है, लेकिन आपको समझने के लिए ना वो इंसाइट चाहिए। अब आपको ये समझ में क्यों नहीं आता ना, आप सिर्फ सोचते हो कि किताब में जो लिखा है वही है, किसी हाई फाई लेक्चरर को सुनूंगा, ओके, मतलब एकदम बढ़िया सा फैकल्टी उसको सुन लूंगा तब जाके मेरे समझ में आएगा, इस टॉपर का नोट को पढ़ लूंगा, उस टॉपर का नोट को पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा। मतलब अल्टीमेटली आप पता है आप क्या बनते हो, आप इंफॉर्मेशन कलेक्टर बन जाते हो। आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं आ पाता है। जब तक आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना आपका खुद का, तब आप ना इस एग्जाम को से समझ नहीं पाओगे। क्रैक करना तो दूर की बात है, आपके ऊपर ना वो सब्जेक्ट के ऊपर वो कमांड नहीं आएगा। ओके। तो चलो मैंने बार बार इसीलिए आपको ये सब चीज एम्फासिस करे बोल रहा हूँ ना, मतलब स्टार्टिंग में या फिर एंड में, ताकि आपके दिमाग में छप जाए चीजें। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आज हमने क्या किया, आज सिर्फ स्कोप सिग्निफिकेंस इसको बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अपॉर्चुनिटी, या फिर बोलते हैं इंपोर्टेंस, सब देख लिए। फिर कल 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 क्या देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स लिया गया, गवर्नमेंट ने क्या लिया, रिफॉर्म्स क्या हो गया, क्या करना है, सब कुछ देख लेंगे। ओके। फिर आपका ये सब्जेक्ट एकदम कवर हो जाएगा, फिर कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ओके। तो आज के सेशन में यहाँ रखता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। ओके, देखो आप भले ही आपका क्लास ए वाला क्लास आप अटेंड नहीं करो, कोई बात नहीं है, देखो, लेकिन कम से कम एक बार वो पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख लेना। ओके। अगर आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट है, तो वीडियो देख लेना। नहीं तो फिर आप पीडीएफ जरूर, क्यों पीडीएफ बनाने में मेरे को कम से कम एक वीडियो बनाने में 3 4 घंटा लग जाते हैं। तो आपको ये जरूर काम में आएगा, मतलब ये मेरा मतलब सोचना है, अंडरस्टैंडिंग है। आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो फिर कल मिलते हैं, बाकी कल निपटा देते हैं जो आधा वो बचा हुआ है, ठीक है। सो टेक केयर, हैव ए वंडरफुल डे, बिकॉज आज दशहरा था। होप एवरी डे विल बी दशहरा फॉर यू। सो सी यू टुमारो। थैंक यू।